السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم درس العاشر پڑھ رہے تھے اور ہم نے جو ہے نا الحمدللہ اب فعل ماضی سے فعل مضارع کی طرف ہم نے جو ہے نا قدم بڑھایا تھا، اور ہم نے بتایا تھا لاسٹ ویک کی کلاس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع کے اندر ہے نا ماضی جو ہے، ماضی کے شروع میں ہم ایک حرف بڑھا دیتے ہیں تو وہ مضارع کی پہچان بن جاتی ہے اور وہ مضارع میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ فعل وہ ہے نا، جیسے کہ کتبہ ہے نا، ذہب، کتبہ، رجع، حفظ، اس کے شروع میں ایک حرف بڑھا دیتے ہیں ہم، یا اور تا اور آ اور نہ ہے نا، یا اور تا اور حمزہ اور نون، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف شروع میں بڑھا دیں گے تو یہ مضارع میں کنورٹ ہو جائے گا، اور مضارع کا مطلب میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس کے اندر پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا مثلا اکتبو ہے نا، کتبہ ماضی اور اکتبو کیا ہے، یہ مضارع۔ کتبہ کا مضارع کیا ہے؟ کتبہ کا مضارع کیا ہے؟ یکتبو۔ ہاں، یکتبو۔ اچھا، تو اب جو ہے نا اگر ہم جو ہے نا الگ الگ جو ہے نا یا اور تا اور آ حمزہ یعنی اور نون بڑھا دیں گے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ یکتبو کہیں گے تو کیا معنی رہتا ہے؟ یکتبو خالد کہیں گے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالد لکھتا ہے یا خالد لکھ رہا ہے۔ عدنان بھائی تھوڑا سا انمیوٹ کیجئے گا، سبھی کے ساتھ میں پوچھیں گے ان سے، سب کو بات سمجھ آ رہی ہو تو۔ سبھی لوگ سمجھ گئے تھے اس بات کو؟ ہاں جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو یا اور تا ہے نا، تو ہم کہہ رہے تھے کہ خالد لکھتا ہے تو یکتب خالد، اور فاطمہ لکھتی ہے تو تکتبو ہاں تو تا بڑھا دیں گے ہم، وہاں پر یا کے بجائے تا کہیں گے، یا کے بجائے تا بڑھا دیں گے وہاں، تکتب فاطمہ ہے نا، اور میں لکھتا ہوں، لکھتی ہوں تو کیا کہتے ہیں ہم؟ اکتبو۔ اکتبو، جی۔ حمزہ بڑھا دیتے ہیں وہاں پر، آ بڑھا دیتے ہیں، آ کہتے ہیں ہم، یا کے بجائے تا کے بجائے آ کہتے ہیں ہم، حمزہ بڑھا دیتے ہیں اکتبو ہے نا، اور ہم لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو نکتبو۔ نکتب۔ ہاں جی، بہت آسان ہے کہ نہیں؟ مضارع سمجھنا آسان ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو ابھی مضارع ہم نے جب شروع کیا تو اب مضارع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ زیادہ مشکل ہے مضارع؟ نہیں سر، نہیں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ پڑھتے رہیں گے تو سارا کچھ آ جاتا ہے نا، صرف لیکچر الحمدللہ سر آسان ہے، اور آپ جو پڑھا رہے ہیں نا تو بہت ہی آسان ہے۔ الحمدللہ۔ اور صرف میں لیکچر دیتا رہا ہوں اور آپ نے لیکچر سنتے رہے تو ویسا نہیں آتی ہے لینگویج کے اندر جو ہے نا انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، خود پڑھنا پڑتا ہے، خود لکھنا پڑتا ہے، خود سمجھنا پڑتا ہے، مشقیں کرنی پڑتی ہے، ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ لکھنے اور پڑھنے کا عمل جو ہے نا جاری ہونا چاہیے۔ صرف میں لیکچر دوں اور آپ سنیں تو اس سے عربی نہیں آئے گی، نہ تو انگلش آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں جو ہے نا اپنا ہاتھ اور اپنی زبان ہلانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ہاتھ اور زبان پریکٹس کرنی پڑے گی۔ پریکٹس کرنی پڑے گی، جی بالکل صحیح، پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تو ہم جو ہے نا الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلاس کے اندر ہی بہت ساری چیزیں پریکٹس کروا دوں۔ تو بہرحال ہم جو ہے نا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جو ہے انہوں نے پوچھا تھا، بات چیت چل رہی تھی زکریا صاحب کی ہے نا، زکریا صاحب ملاقات کے لیے گئے تھے حامد صاحب کی، اور ان کا بیٹا تھا وہاں، وہ نہیں تھے حامد صاحب، تو بیٹے سے بات چیت چل رہی تھی زکریا صاحب کی بات چیت چل رہی تھی موسیٰ سے۔ موسیٰ بیٹے ہیں حامد کے، حامد صاحب گھر پر نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے مارکیٹ ہے نا۔ تو پوچھا کہ بھئی جو ہے نا، تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے۔ تو یہ دیکھیے گا یہاں کہا تھا کہ جو ہے نا زکریا صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ ایذهب الى المصنع ہے نا، موسیٰ نے کہا تھا، زکریا صاحب پوچھا تھا کہ وہاں کب تک رہتے ہیں وہ جو ہے نا کارخانے کے اندر ہے نا۔ تو مصنع، کارخانے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کارخانے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مصنع کا مطلب ہوتا ہے کارخانہ ہے نا۔ تو دیکھیے گا زکریا نے کہا کہ ایذهب الى المصنع ہے نا مرۃ اخرى بعد الظہر۔ زکریا صاحب نے کیا پوچھا تھا؟
अयذهبوا إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر, क्या वो कारखाना जाते हैं मर्रतन उखरा दोबारा. मर्रतन उखरा का मतलब क्या क्या होगा? दोबारा. जी, मर्रतन का मतलब एक मर्तबा होता है अरबिक में. मर्रतन का मतलब क्या होता है? एक मर्तबा. हाँ, और दो मर्तबा तो मर्रतैन. जी, मर्रतैन. वेरी गुड. एक मर्तबा मर्रा और दो मर्तबा मर्रतैन, दोबारा या दूसरी मर्तबा मर्रतन, है ना, ऐसा रहेगा. ठीक है. तो अयذهبوا إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر, ज़करिया ने पूछा था क्या वो कारखाना जाते हैं दोबारा, है ना, दूसरी मर्तबा दोबारा जाते हैं ज़ोहर के बाद. तो बच्चे ने कहा था, उनके हामिद मूसा ने जवाब दिया कि ला, नहीं नहीं, ला यज़हब. अब ये ला जो है ना, एक ला का मतलब नहीं, नो, नॉट, है ना, नो. ला यज़हब, ही डजंट गो, है ना. तो ला दो मर्तबा यहाँ पर, ला के बाद कॉमा है. ला का मतलब नहीं नहीं नहीं. ला यज़हबु बाद ज़ोहर, नहीं, वो ज़ोहर के बाद नहीं जाते. तो दो मर्तबा नहीं है, उर्दू में भी कहते हैं नहीं, वो ज़ोहर के बाद नहीं जाते. तो पहला नहीं जो है ना वो नेगेशन का है. चलिए, और दूसरा भी नेगेशन कहिए. ला यज़हबु बाद ज़ोहर, वो जो है ना ज़ोहर के बाद नहीं जाते. तो यज़हबु और ला यज़हबु, यज़हबु और ला यज़हब. ला यज़हबु, है ना. अज़हबु और ला अज़हबु और ला, अज़हब. हाँ, अफ़हमु और नफ़हमु और ला नफ़हमु, है ना. तो मुस्बत और मनफी, नेगेटिव पॉजिटिव. मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ. मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ. मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ. मैं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, है ना. तो जो है ना ये ला ऐड कर देंगे तो मनफी बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है. ठीक है ना. तो कहा कि भाई वो ज़ोहर के बाद नहीं जाते. यजलिसु, वो बैठते हैं. जलसा यजलिसु यानी बैठना. जलसा यजलिसु यानी बैठना. जी, बैठना. ठीक है. यजलिसु होना, वो यहीं बैठते हैं. फिर मकतब ही, यहीं आसपास कोई ऑफिस है उनका, तो वहीं बैठ रहे थे ऑफिस में. बाद सलातिल अस्र, असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद अपने ऑफिस में बैठते हैं वो यहीं पर. तो ज़करिया साहब ने फिर पूछा कम आमिलन, कम का देखिएगा, आमिल कहते हैं वर्कर को, मजदूर को. अमल कहते हैं काम को अरबी में. आमिला या अमलू, काम करने को क्या कहते हैं अरबिक में? आमिला या अमलू. ये जो है ना जब हम पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ते रहने से ये सारे वर्ब जो है ना उनकी शक्लें हमें याद हो जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है ना. उनको उनकी लिस्टें और उनके जो है ना टेबल बनाकर कोई फायदा नहीं है. हाँ जी, वर्ब्स के टेबल बना कर कोई फायदा नहीं. नोट्स लिख मुख्तसर में लिखना चाहिए, लेकिन ज्यादा याद करना चाहिए, है ना. तो आमिला यामलू, कम आमिलन यामलू, कम आमिलन. कम के बारे में हमने बताया था आपको कि कम के बाद जो इसमें इस्तेमाल होता है, कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको मंसूब होता है, वाहिद वाहिद और मंसूब. मंसूब इस्तेमाल करते हैं हम, है ना. भले ही उर्दू में हम उर्दू में जो है ना बहुत सारे कहेंगे. कितने मजदूर, हम उर्दू में क्या कहेंगे? आपके कारखाने में कितने मजदूर काम करते हैं. हम यहाँ पर कितने मजदूर मतलब बहुत सारे मजदूर, है ना. तो मजदूर जमा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू में, है ना. आपके कारखाने में कितने मजदूर, तो जमा का सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू में. लेकिन हमें उर्दू नहीं देखना है. जब हम अरबी पढ़ते हैं तो उर्दू को साइड में रख दिया करें आप. ठीक है. उर्दू का कोई भी मामला जो है ना हमें हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा. ठीक है ना. बहुत सारे अल्फाज उर्दू में मुज़क्कर है, अरबी में मुअन्नस है. बहुत सारे अल्फाज इसके अपोजिट, अरबी उर्दू में मुज़क्कर है, उर्दू में मुअन्नस है, अरबी मुज़क्कर है. मुज़क्कर और मुअन्नस उर्दू और अरबी मुख्तलिफ होते हैं, है ना. तो जो लफ्ज उर्दू में मुअन्नस है, जरूरी नहीं कि वो जो है ना अरबी में आकर भी मुअन्नस बने, वो हो सकता है मुज़क्कर बने. तो उर्दू को साइड में रखना होगा. तो कम आमिलन, है ना, कितने आमिल, कितने मजदूर, कितने वर्कर. ठीक है. या अमलू, अमल करते हैं, काम करते हैं. अमल का मतलब वो अमल नहीं, काम करना, है ना. आमिल यामलू, कम आमिलन यामलू फी मसनइकुम, आप लोगों के कारखाने में कितने मजदूर काम करते हैं. तो मूसा ने जवाब दिया मसनउना लैसा बिकबीरिन, मसनउना लैसा
बे कबीर। देखिएगा लैसा की भी मश्क मैंने कराई थी आप लोगों को, मश्क की प्रैक्टिस डाली थी मैंने आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देखा थी क्या वो लैसा वाला वीडियो जो मैंने समझाया था उसमें? जी सर। हाँ जी, सभी लोगों ने देखा था कि जो मैं प्रैक्टिस डाल रहा था अभी तक, और इंशाल्लाह मैं फिर जो है ना दोबारा सुबह जो है ना सुबह फिर दोबारा एक वीडियो इंशाल्लाह डालने की कोशिश करूंगा, ताकि जो रूल हमने पढ़े हैं अब तक, जो हम रूल पढ़ चुके हैं उनका जो है ना, उनके लिए मैं जो है इंटरेक्टिव क्लासेस आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, ताकि आप उसको देखें और अपनी जुबान में जो है ना जवाब देने की कोशिश करें, उसी से आएगी अरबी इंशाल्लाह। तो लैसा का इस्तेमाल बताया था मैंने। लैसा का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम? लैसा के बाद अक्सर जो है ना बा इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, लैसा के बाद अक्सर हम क्या करते हैं? बा का इस्तेमाल करते हैं। बगैर बा के भी इस्तेमाल होता है अरबिक में, कोई मसला नहीं है ना। वो काना की फैमिली में से है ये लफ्ज। लैसा क्या है, किसकी फैमिली से ताल्लुक रखता है, किसके खानदान का लफ्ज? हाँ जी, काना की फैमिली का लफ्ज। काना व अखवात। हाँ जी, काना इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, नहीं इन्ना नहीं ना, काना ना, इन्ना की फैमिली में से नहीं है, काना की फैमिली में से। काना सौरा वल्ला बाता अस्बा हमसा आदा आदा गदा रामा ज़लमन फक्का मा बरहा मा फता व दाम व लैसा। देखेंगे हम लोग हमारे उस्ताद जी ने बचपन में खूब मारा था तो याद कर लिया था हमने, लेकिन याद है, फायदा होता है उसका अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काना की फैमिली में से ही है, इन्ना की फैमिली में से नहीं है। हाँ जी, काना की फैमिली से। काना की फैमिली काना क्या काम करता है? इसम को क्या लगा, काना जब इस्तेमाल होता है तो इसम क्या, इसम को मरफू करते हैं या मंसूब करते हैं? इसम और खबर एक मंसूब होगा। हाँ, मरफू होगा इसमें, मरफू जी। तो हम जो है ना काना और इन्ना को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अपोजिट है उनका जो है ना इसम और खबर, है ना। हम कहेंगे कि भी टीचर बीमार है, टीचर बीमार था, तो टीचर बीमार था तो काना का इस्तेमाल करेंगे वहां पर, है ना। टीचर बीमार था, कानल मुदर्रिसु मरीदन। हम कैसे कहेंगे टीचर बीमार था? अब यहाँ पर काना का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर काना का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कि कानल मुदर्रिसु मरीदन, तो अल मुदर्रिसु को हम कहेंगे काना का इस्म है ये, और मरीदन को हम कहेंगे कि ये काना की खबर है। तो काना का इस्म मरफू होता है हमेशा, काना का इस्म हमेशा मरफू होता है जी। कानल्लाहु अलीमन हकीमा, कानल्लाहु अलीमन हकीमा। कुरान में बहुत सारा है ये तो, कानल्लाहु खबीरा, कानल्लाहु बसीरा, कानल्लाहु अलीमन खबीरा। तो कानल्लाहु, अल्लाह काना का इस्म है, खबीरन बसीरन जो है ना काना की खबर है। तो काना का इस्म और काना की खबर, इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर इसके अपोजिट होती है ना। तो इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर इसके अपोजिट होती है। इन्ना का इस्म मंसूब होता है, इन्ना का इस्म हमेशा हम कहेंगे कि इन्नल मुदर्रिसा मरीदुन, हम कहेंगे इन्नल मुदर्रिसा, हाँ जी, इन्नल मुदर्रिसा मरीदुन। तो इन्ना का इसमें देखेंगे इन्नल मुदर्रिसा, अल मुदर्रिस को मंसूब बना रहे हैं हम इन्ना की वजह से, और मरीजुन को हम मरफू बना रहे हैं इन्ना की वजह से। तो अल मुदर्रिसा मरीजुन, तो इन्ना का इसम मंसूब और इन्ना की खबर मरफू होती है ना। तो दो इन्ना और काना के साथ दो जुमले इस्तेमाल, याद रखिएगा। इन्नल्लाह अलीमुन लिखिएगा मत, है ना, लिखिएगा मत। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? इन्नल्लाह अलीमुन, इन्ना के साथ कैसे कहेंगे हम? अलीमुन। हाँ, और काना के साथ कैसे कहेंगे हम? कानल्लाहु अलीमन। कानल्लाहु अलीमन। तो ये दो जुमले याद कीजिएगा आप, इन्ना की फैमिली और काना की फैमिली का पूरा जो है ना आपको एराब याद हो जाएगा। इन्ना की फैमिली का एराब आपसे पूछा जाए कि इन्ना की फैमिली का एराब क्या होता है, इन्ना एंड फैमिली का एराब क्या होता है, तो आप फौरन अपनी जुबान में ये जुमला दोहराइएगा, इन्नल्लाह अलीमुन। क्या कहेंगे हम? एराब मालूम करने के लिए कैसे मालूम करेंगे हम? मैं आपसे कहूँगा, हाँ, दोबारा सुनिएगा, इस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। इन्ना का जो है ना इन्ना का फंक्शन और काना और उसकी फैमिली का फंक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर मरफू मंसूब क्या होती है, तो आप फौरन अपनी जुबान में एक जुमला दोहरा लीजिएगा, इन्नल्लाह अलीमुन, इन्नल्लाह अलीमुन। तो फौरन वहां से निकालिएगा कि अल्लाह मंसूब है या इन्ना का इस्म है।
اور علیمن مرفوع ہے, یہ انا کی خبر ہے نا, تو انا کا اسم منصوب ہوتا ہے, انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. میں کہوں کہ کانا کا فنکشن بتائیے, کانا کا اعراب بتائیے اس کی فیملی کا, آپ پڑھیے گا کان اللہ علیمن, کان اللہ علیمن, تو اللہ مرفوع علیمن منصوب, اس کا مطلب کانا کا اسم جو ہے نا مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو آپ جو ہے نا جملہ پڑھیے پہلے زبان میں اور پھر مجھے بتائیے کہ جو ہے نا یہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. یاد رہے گا یہ دو جملے, تو پوری فیملی کا عمل یاد ہو جائے گا. چلیے گا جی سر. اور جی, انشاءاللہ. تو لیسا جو ہے کانا کی فیملی میں سے ہے یہ. اچھا لیسا جو ہے نا با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اکثر و بیشتر, اور بغیر با کے بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں مقصد, اگر بغیر با کے استعمال ہوگا تو پھر وہ کانا کی طرح استعمال ہوگا. کیا کہا میں نے؟ اگر لیسا بغیر با کے استعمال ہو, بغیر با کے استعمال ہو تو کانا کی طرح استعمال, کانا کی طرح استعمال ہوگا. کہیں گے کہ ٹیچر بیمار نہیں ہے, کہیں گے ہم ٹیچر بیمار نہیں ہے, تو لیس المدرس بمریض, ٹیچر بیمار نہیں ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ لیس المدرس مریض. یہ با کے ساتھ لیس المدرس بمریض, یہ با کے ساتھ. اگر با کو ہٹا دے تب بھی درست ہے, تو لیکن اس شکل میں ہم کہیں گے لیس المدرس مریضا, اس شکل میں ہم کیا کہیں گے؟ لیس المدرس مریضا, کان المدرس مریضا. تو لیسا جو ہے نا کانا کی طرح عمل کرے گا اعراب میں, کیونکہ ایک ہی فیملی ہے نا. تو لیسا جو ہے نا با کے ساتھ اور بغیر با کے دونوں استعمال ہوتا ہے. تو بغیر با کے استعمال کریں گے تو پھر منسوخ کر دیں گے ہم, لیس المدرس مریضا کہیں گے ہم, لیس المدرس مریضن نہیں کہیں گے. با لگا دیں گے تو بے مریضن, با ہٹا دیں گے تو مریضا, لیس المدرس مریضا, ہے نا. کان المدرس مریضا, لیس المدرس مریضا, ایک ہی جیسا اعراب ہوگا دونوں کا, ہے نا. اسم جو ہے نا مرفوع ہوگا, خبر منصوب ہوگی اس کی. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر. جی سر انشاءاللہ. ہاں جی. میں بیمار ہوں تو کیا کہیں گے ہم؟ میں بیمار ہوں, انا مریض. انا مریض, انا مریض, ٹھیک ہے, انا مریض, انا مریضۃ. اب میں بیمار نہیں ہوں تو اب کیسے کریں گے آپ اس کے لیے؟ میں بیمار نہیں ہوں, اب اس کو دو طریقے سے کہیں گے. لیسا کے ساتھ با لگائیں گے اور لیسا کے ساتھ با کو لیسا سے با کو ہٹا دیں گے. دو طریقوں سے ہم اس جملے کو کہہ سکتے لستو بی مریضن, لستو بی مریضن, لستا مریضن, لستو مریضن, لستو بے مریضن یا بے مریضتن. عورت کہے گی لستو بے مریضتن, جی ہے نا. مرد کہے گا لستو بے مریضن, مرد کہے گا لستو بے مریضن, عورت کہے گی لستو بے مریضتن, ہے نا. اور با کو ہٹا کر ہم کیسا پڑھیں گے پھر؟ مریضتن, لستو مریضتن, لستو مریضتن, لستو مریضتن, لستو مریضن, لستو مریضن, لستو مریضتن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں کے میننگ میں کچھ فرق نہیں ہوگا. میننگ میں کوئی فرق نہیں آنا ہے, میننگ میں کوئی فرق نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے گا آگے بڑھتے ہیں ہم. تو مصنعنا لیس بکبیر, الحمدللہ. بعض لیسا کو جو ہے نا, لیسا کو اچھی طرح آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا, امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا, ہے نا. تو دیکھیے گا لیس بکبیر, بڑا نہیں ہے ہمارا کارخانہ. یعمل فیہ, اس میں کام کرتے ہیں. یعمل فیہ, اس میں کام کرتے ہیں, ہے نا. عملہ بولیے گا کام کرنے کی عربی. عملہ یعمل, يعمل فيه 125 عاملا. يعمل فيه, فيه کے اندر ہی کی جو ضمیر ہے, فیہی کے اندر جو ہی کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے استعمال کی گئی ہے؟ مصنع کی طرف جاؤ, فیکٹری کے لیے, کارخانے کے لیے, مصنع کے لیے, مصنع کے لیے, مسنا کے نہیں, ہے نا. اردو والا لفظ نہیں استعمال کرنا ہے, بلکہ جملے کے اندر جو لفظ استعمال ہوا اسی کو کہنا ہے ہم نے. تو مصنع کہیں گے ہم, نہ کہ ہم اس کا ترجمہ کہیں گے فیکٹری. تو یہ فیکٹری کی طرف نہیں بلکہ مصنع کی طرف جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے اس کی ضمیر, یہ استعمال کی گئی ہے یہ ضمیر, ایسا کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو یعمل فیہ یعنی فی المصنع, تو کارخانے اس میں یعنی کارخانے میں کام کرتے ہیں. 125, یہ کتنے ہیں؟ یہ 125 کتنے ہو گئی ہے؟ 125 125, 125 جی, 125,
25 مئتن و خمسۃ و عشرون عاملا 125 مزدور کام کرتے ہیں، وہ مہندسان اور کتنے انجینئر کام کرتے ہیں؟ 2 انجینئر اور 2 انجینئر کام کرتے ہیں، ہے نا. 125 مزدور ہیں اور 2 انجینئر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں اتنا بڑا کوئی کارخانہ نہیں ہے، ایسی بات ہے. زکریا صاحب نے دیکھے گا، ہم اس لیسن کو ہم 2 منٹ میں ختم کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. زکریا صاحب نے پوچھا، کہا کہ الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربعا، الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربعا، الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربعا. التاسعہ کتنے بجتے ہیں؟ الساعۃ التاسعہ کتنے بجتے ہیں؟ 9 بجے. 9 ہاں جی، کتنے بجتے ہیں؟ الساعۃ التاسعہ 9 بجتے ہیں جی. الساعۃ التاسعہ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے بجے ہوتے ہیں؟ 9 بجے. 9 بجے. اور 5 بجے کیا کہیں گے ہم؟ 5 بجے کہیں گے تو کیسے کہیں گے ہم؟ خامسہ تو کہیں گے، خمسہ نہیں کہیں گے. خمسہ اربع ستہ نہیں کہیں گے. الخامسہ الرابعہ السادسہ الثالثہ الثامنہ التاسعہ العاشرہ، ایسا کہیں گے ہم. گھڑی جب ٹائم بتانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ عشرہ کے بجائے عاشرہ. بتائیے گا مجھے کیسے کہیں گے ہم؟ اربع کے بجائے رابع 4 بجے 3 بجے الثالث الساعۃ الثالثۃ، الساعة الثالثة ہے نا. ساعت جو لفظ ہے مؤنث ہے، ساعت جو لفظ ہے مؤنث ہے. تو 2 بجے بولیے. الثانیہ 1 بجے الساعۃ الواحدہ الساعۃ الواحدہ جی، الساعۃ الواحدہ ہے نا. 9 بجے التاسعۃ کہیں گے کہ ابھی 9 بجے، کہیں گے کہ ابھی 9 بجے تو ہم کہیں گے الساعۃ الآن التاسعۃ. ابھی 9 بجے ہے، ابھی 9 بجے تو ہم کیسے کہیں گے عربک میں؟ الساعۃ الآن التاسعہ کیسے کہیں گے؟ بول کے دکھائیے ذرا. ابھی 9 بجے ہے. التاسعة الساعة كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ بولیے 9 بجے. الساعة الآن التاسعة ہے نا. اور بحرین میں ہمارے 5:10 ہوئے. تو بہرحال موٹا موٹا فگر پکڑیں گے تاکہ یاد ہو جائے. اچھا یہ دیکھیے گا، ہمیں سمجھ میں آ گئی بات، لیکن ہمیں 8:45 اور 9:15 بولنا ہو، 8:45 9:15 ہے نا، 4:45 4:15 4:45 5:15. یہ 8:45 اور 9:15 جو بولتے ہیں اردو میں، تو اس کے لیے الا ربع 8:45 بولنا ہو اگر ہمیں 8:45 بجے، بجائے اس کے کہ ہم 9 بجے کہیں، ہم کہیں کہ 8:45 بجے. 8:45 بجے سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ ہم لوگ 8:45 بجے جو بولتے ہیں، 9 بجے 9 بجنے میں 15 منٹ کم، 9 بجنے میں 15 منٹ کم ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں 8:45. ہاں جی، اس کو کہتے ہیں 8:45 جی. تو اس کو ہم عربی میں پونے کو 8:45 8:45 8:45. تو پونے کا جو معنی ہے اس کے لیے ہم الا ربعان کہیں گے. ہم پونے کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اس کے لیے الا ربعان کہیں گے. تو 8:45 بجے تو ہم یوں کہیں گے الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربعان، الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربعان. ابھی 8:45 بجے ہیں، ابھی 9 بجے ہے. ہاں جی 4:45 بجے. تو کیسے کہیں گے اب ہم؟ الساعة الآن إلا ربعا، الساعة الخامسة إلا ربعا، الساعة سر ہمارے یہاں انڈیا میں 7:45 بج رہے ہیں، تو اب کیا کہیں گے؟ تو آپ ہی بتائیے مجھے، آپ ہی بتائیے مجھے 7:45 بجے کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ آپ ہی بتائیے گا. کون بتائے گا مجھے؟ کون بتائے گا مجھے 7:45 بجے؟ الساعة الثامنة إلا ربعا، کیا کہیں گے؟ ہاں، ساعة 8 نہیں کہیں گے، الساعة الثامنة
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो जकरिया साहब ने टाइम देखिएगा, हमने चलते चलते टाइम भी सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 8:45 है ना। तो चलिएगा, वमा रजा अबू का, तो कहा जकरिया साहब ने कि अभी 8:45 बज चुके हैं, वमा रजा अबू का, और लेकिन अब तक जो है ना आपके वालिद साहब वापस नहीं आए हैं। वमा रजा, रजा मा रजा, बोलिएगा, वापस आए, रजा राजा रजा माँ रजा, रजा मा रजा। मादी में माँ लगाते हैं, मादी में क्या लगाते हैं, मनफी बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए माँ लगाते हैं, माँ नेगेटिव। माँ राजा लेकिन मुदारे में माँ नहीं लगाते, ला लगाते हैं। मुदारे में क्या लगाते हैं, माँ नहीं लगाते बल्कि ला ला लगाते हैं। ला यरजिउ, रजा यरजिउ, वापस आना, बोलिएगा, वापस रजा आना, राजा रजा यरजिउ, रजा यरजिउ, रजा यरजिउ, मा रजा, मा रजा ला यरजिउ, मा रजा ला यरजिउ। तो मादी के साथ क्या लगेगा, मादी के साथ क्या लगेगा, माँ माँ लगेगा, और मुदारे के साथ क्या लगेगा, ला ला हाँ जी। मैंने नहीं समझा, मैंने नहीं समझा, माँ माँ फहीम। तो अब मादी की बात कर रहे हैं हम, पहले मादी, माँ फहीम तो, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं समझता, ला अफहम जी, ला अफहम। मैंने नहीं पी चाय, मैंने नहीं पी, माँ शरीब तो, मैंने नहीं पी, माँ शरीब तो, मैं नहीं पीता, ला अशरबू, ला अशरबू जी, मुदारे में ला कहेंगे, ला अशरबू अशाय, ला अशरबू, माँ शरीब तो शाय, ला अशरबू शाय, है ना। माँ अशरबू कह सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना लाम लगेगा, ला लगेगा मुदारे में, वो उसका थोड़ा सा फर्क है, वो बाद में जब आगे बढ़ेगी तो बात समझ आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये याद रखिएगा, मुदारे के साथ जो है ना लाम लगाकर इस्तेमाल कीजिए, रूल को याद रखिएगा। एक्सेप्शन जो है ना हम बाद में जो है ना एक्सेप्शन को साइड में रखा करें, जो बुनियादी रूल है उसको अच्छी तरह याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूसा साहब ने कहा कि लअल्लहु यरजिउल यौम मुतअखिरन, लअल्लहु, लअल्ल का मतलब क्या होता है, शायद के, लअल्ल का मतलब क्या होता है, शायद के। लअल्ल किसके, लअल्ल किसकी फैमिली में से है, इन्ना की फैमिली में से है। कौन कौन से पूरी फैमिली के पूरी फैमिली के मेंबर है कि और कौन बताएगा, इन्ना की पूरी फैमिली में को काउंट करके कौन बताएगा मुझे, ठीक मैं बोलूं, बोले, कोई भी बोले। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला। और कौन बताएगा मुझे, इन्ना की फैमिली गिराएगा, कौन काउंट करके बताएगा मुझे, कोई बता सकता है। हाँ जी, इन्ना अन्ना लैता लल्ला, उसको जो है ना तरतीब से याद रखिएगा। इन्ना अन्ना लैता, तीन याद रखिएगा, बहुत आसान है याद रखना, एक साथ में बोल सकते हैं हम उसको। तीन को याद रखिए, फिर तीन को याद रखिए। इन्ना अन्ना का अन्ना, ये तीन को याद रखिए। पहले क्या कहा मैंने, कौन से तीन है, इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना, इन तीन को याद रख लीजिएगा अच्छी तरह रटकर। फिर लाकिन न लई तला, इन तीन को बाद में याद कीजिएगा। फिर वक्त जिनको याद नहीं है, जिनको याद नहीं है वो कैसे याद करें, इन्ना की फैमिली में से याद कर लीजिएगा एक मरतबा इसको, पहले तीन को याद कर ले, उसके बाद याद हो जाए तो फिर बाकी के जो तीन है उनको याद कर लीजिएगा। इन्ना अन्ना का अन्ना, ये तीन को याद रखिएगा, बोल के दिखाइए जरा। अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना। फिर लाकिन न लई तला अल्ला, लाकिन न लई तला अल्ला, है ना। तो फिर बाद में जब याद हो जाए तो फिर इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन न लई तला अल्ला एक साथ में आ जाता है ये, तो फिर है ना। तो तीन को याद रखिएगा, फिर वक्त बाद में अगले हफ्ते जो है ना तीन जो है ना याद करेंगे हम, फिर जो है ना पूरा एक साथ में बोलकर दिखाइएगा मुझे, जिन जिन को याद नहीं है। ठीक है, सिस्टर मुनीबा है, सिस्टर यास्मीन है, सबको याद है, याद करना है सर। हाँ जी, याद करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। सारा कुछ साथ में चलेगा, खाना पकाना भी साथ में चलेगा, घर का काम धाम भी साथ में चलेगा, जिंदगी की परेशानियां और मुसीबतें और बीमारियां भी साथ में चलेंगी, लड़ाई झगड़े भी साथ में चलेंगी, और जो चलेंगे, और जंगें भी साथ में चलेंगी। लेकिन सीखने का अमल जो है ना रुकना नहीं है कहीं कभी,
सारा जो है ना कभी रुकना नहीं है। अगर हम ये सोचे कि जो है ना जब राहत मिलेगी तब सीख लेंगे, तो राहत तो कभी भी नहीं है। राहत तो कभी भी नहीं। राहत कभी भी नहीं है। आपको फुर्सत जो है ना, फुर्सत कभी भी नहीं मिलनी है लाइफ में, है ना। फुर्सत कभी भी नहीं। आप ये सोचे कि भी जब मैं खाली पीली थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाएगा तब मैं अरबी सीख लूंगा, मुझे वक्त मिलेगा तब इंग्लिश सीख लूंगा, तो वक्त तो कभी भी नहीं मिलना है। ठीक है, वक्त कभी नहीं मिलना। ये सारे झमेलों के साथ जो है ना सीखते रहना है साइड में। सारे झमेले चलते रहेंगे, घर के मसले मसाइल चलते रहेंगे, जिंदगी और मुल्क के मसले मसाइल चलते रहेंगे, है ना। लेकिन जो है ना ये सीखने का अमल भी उसी के साथ में जारी रखना पड़ेगा हमें, है ना। जिस तरह हम खाना खाते हैं, है ना, जंगे चल रही है तो हम खाना थोड़ी बंद कर देते हैं, लड़ाई हो रही तो खाना थोड़ी बंद होता है हमारा। तो जिस तरह खाना बंद नहीं हो सकता, सीखना भी बंद नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, निअमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग जो है ना इन नेमतों के बारे में जो है ना लापरवाही करते हैं और ज़ाय कर देते हैं, धोखे में रहते हैं। फरमाया कि अस्सिहत वल फराग, वो दो नेमतें हैं, एक तो सेहत की और अल फराग खाली वक्त। खाली वक्त और सेहत, ये दो नेमतें ऐसी हैं कि इंसान अक्सर और बेशतर लोग जो है ना खसारे में है। अक्सर और बेशतर लोग जो है ना इनको ज़ाय कर देते हैं, सेहत को भी ज़ाय कर देते हैं। जब हट्टे कट्टे नौजवान रहते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा एंजॉय करने का और पिकनिक का टाइम है और ग्रिल करने में लगे रहते हैं। बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापा हमें ग्रिल करता है फिर, है कि नहीं। तो जिंदगी ऐसी है, जब हट्टे कट्टे और नौजवान होते हैं तो सोचते हैं कि जो है ना बाद में सीखेंगे, और जब बुढ़ापा आता है, शुगर होती है, बीपी हो जाता है हाई, तो फिर जो है ना शुगर जो है ना हमें जीने नहीं देती है और बीपी जीने नहीं देता हमें, तब कहाँ सीखना हमें। ठीक है। और फराग जो है ना फिर तो फराग रहता है, लेकिन फराग नहीं रहता हमारे पास। आप खाली होते हैं, बड़े बड़े बिस्तर पे खाली है, लेकिन आप सीख नहीं सकते क्योंकि सेहत साथ नहीं दे रही ना हमें हमारी। तो अस्सिहत वल फराग दो नेमतें ऐसी हैं, लिख लीजिएगा इस हदीस को अपने नोटबुक में कि निअमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नासी अस्सिहत वल फराग, अस्सिहत वल फराग। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और मुझे भी जो है ना हम सबको हिम्मत और तौफीक दे कि हम जो है ना अपनी सेहत का सही इस्तेमाल करें और अपने औकात का सही इस्तेमाल करें। बहरहाल देखिएगा, तो ये सवाल और जवाब है। इन सवाल के जवाबात आप लोग जो है ना इसमें कह रहे हैं कि भी जो नीचे सवालात है 1 2 3 4 5 6 8 सवालात है, इन सवालों के जवाबात आप लोग देने की कोशिश करें। तो आप लोग अपने नोटबुक पे इन सवालों के जवाब लिखिएगा और जो है ना उसको जो है ग्रुप में डालिएगा फोटो लेकर। उसका मैं चेक करूंगा किसने जो है ना तो पहला सवाल है ज़ियारत मन ज़हब ज़करिया, ज़करिया साहब किसकी मुलाकात के लिए गए थे। दूसरा सवाल है मता ज़हब, कब गए थे। तीसरा सवाल है ऐन यज़हब हामिदुन बाद सलातिल फज्र, फज्र की नमाज के बाद हामिद साहब कहाँ जाते हैं। उसके बाद चौथा सवाल है मता यरजिउ मिन अस्सूक़ी, वो मार्केट से कब वापस आते हैं। पांचवा सवाल है माज़ा यफ़अलु फिल बैति, घर में क्या करते हैं वो। नंबर 6 का सवाल है मता यज़हबु इलल मस्ना, फैक्ट्री कब जाते हैं। और सातवां सवाल है कम आमिलन यअमलु फी मस्नई, उनके कारखाने में कितने मजदूर काम करते हैं। और आठवां सवाल है कि कम मुहंदिसन यअमलु फी मस्नई, कितने इंजीनियर उनके कारखाने में काम करते हैं। तो ये 8 सवालात है, मैंने समझा दिए इसको। तो आप जो है ना इसके जवाब ढूंढिएगा और लिखिएगा, देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना ट्रू और फॉल्स है, तो इतना कोई मसला नहीं है इसमें। ट्रू और फॉल्स जो है ना आप लोग समझिएगा। मैं जो है ना दो इसमें आगे बढ़ता हूँ। नंबर 3 की एक्सरसाइज देखते हैं हम। नंबर 3 की एक्सरसाइज देखते हैं हम। देखिएगा नंबर 3 की एक्सरसाइज में बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि तअम्मलिल अमथिलतल आतियता, नीचे एग्जाम्पल है, इन पर गौर कीजिएगा। माजी का सेगा बता रहे हैं कि माजी है, ये क्या है। माजी है ज़हबा क़रअ गसला, ये क्या है माजी का है। ज़हबा माजी है, लेकिन माजी हाँ, लेकिन ये जो है ना ज़हबा का मुज़ारे यज़हबु, ज़हबा का मुज़ारे क्या बनता ज़हब अलीयुन इलल मदरसा अम्स, अली कल स्कूल गया था। ज़हब अलीयुन इलल मदरसा अम्स, लेकिन यज़हब अलीयुन इलल मदरसा कुल्ल यौम, अली रोजाना स्कूल जाता है। अब ये देखिएगा जाता है जो है ना ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट जो है ना इंडेफिनिट। अच्छा यज़हबु के 3 तर्जुमे करेंगे, मैंने बताया था आपको। यज़हबु का क्या तर्जुमा करेंगे हम, 3 तर्जुमे करेंगे। क्या 3 तर्जुमे कर सकते हैं यज़हबु के। जाता है जाएगा, जाता है जा रहा है और जाएगा। जाता है
جائے گا جا رہا ہے اور جائے گا جائے گا. جاتا ہے جا رہا ہے جائے گا. ہاں تو پریزنٹ کے اندر دونوں پریزنٹ ہے, انڈیفینٹ بھی اور کنٹینیوس بھی ہے نا. گوز اینڈ از گوئنگ, گوز اینڈ از گوئنگ ہے نا. تو دیکھیے گا پریزنٹ کے اندر دونوں پریزنٹ ہے, انڈیفینٹ اور کنٹینیوس بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. پھر جائے گا تو جاتا ہے جا رہا ہے جائے گا, کھاتا ہے کھا رہا ہے کھائے گا, سمجھتا ہے سمجھ رہا ہے سمجھے گا. میں کھاتا ہوں میں کھا رہا ہوں میں کھاؤں گا, میں سمجھتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھوں گا, میں پڑھتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھوں گا. تو 3 ترجمے مضارع کے اندر. ہاں جی ہاں جی, مضارع کے اندر 3 ترجمے ہوں گے. مضارع کے اندر 3 ترجمہ تو کریں گے. آپ کو چاہے یہ بولنا ہو کہ میں پڑھتی ہوں تب بھی ہم کہیں گے اقرأ. آپ کہہ رہے ہو کہ میں پڑھ رہی ہوں تب بھی آپ کہیں گے اقرأ. اگر آپ کہیں کہ بھی میں پڑھوں گی تب بھی آپ کہیں گی اقرأ. تو اقرأ میں پڑھتی ہوں میں پڑھتا ہوں ہے نا. تو ایک کو پکڑ لیتے ہیں ہم, میں پڑھتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھوں گا, میں پڑھتی ہوں میں پڑھ رہی ہوں میں پڑھوں گی. تینوں ہے اس کے اندر, یاد رکھیے گا. تو قرأ اسماعیل القرآن, اسماعیل نے قرآن پڑھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی یقرأ اسماعیل القرآن بعد صلاة الفجر کل یوم, اسماعیل قرآن پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد کل یوم ہر دن. تو یقرأ کا مطلب پڑھتا ہے, پڑھ رہا ہے, پڑھے گا, تینوں ترجمے. تو غسل کا یغسل, غسل دھویا, یغسل یغسل دھوئے گا. دھوتا ہے دھو رہا ہے دھوئے گا. دھوئے گا دھونا. 3 ترجمے, دھوتا ہے دھو رہا ہے دھوئے گا. یغسل الرجل سیارتہ کل اسبوع, اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یغسل الرجل سیارتہ کل یوم, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آدمی روز گاڑی دھوتا ہے, ہر ہفتے گاڑی دھو رہا ہے, آدمی گاڑی دھوئے گا. ہر ہفتے گاڑی دھوتا ہے. گاڑی دھوتا ہے. آدمی گاڑی دھو رہا ہے, گاڑی دھوئے گا, گاڑی دھوتا ہے. ہاں جی, میں روزانہ اپنی گاڑی دھوتا ہوں. انا اغسل سیارتی کل یوم, انا اغسل سیارتی کل یوم. انا اغسل سیارتی کل یوم. ہاں جی, میں روزانہ چائے پیتا ہوں پیتی ہوں. انا اشرب اشرب الشاي کل كل یوم. يوم. أنا أشرب شربت. انا اشرب, میں روزانہ چائے پیتا ہوں یا پیتی ہوں. انا اشرب الشاي, انا اشرب الشاي كل يوم. يوم. كل يوم. ہم لوگ ہر ہفتے عربی پڑھتے ہیں. بنائیے. انا اقرأ, ہم لوگ ہر نحن ندرس كل موضوع عربي. ہاں نحن نقرأ لغة العربية ہر ہفتے كل اسبوع. كل اسبوع. اب یہاں پر قرا یقرأ کے وجہ درس یدرس کہیں گے ہم, یا ہے نا کیا کہیں گے ہم؟ قرا درس یقرأ کو یدرس. کہیں گے ٹو ریڈ اینڈ ٹو اسٹڈی. ٹو ریڈ اینڈ ندرسو. ہاں جی, ٹو ریڈ اینڈ ٹو اسٹڈی. ریڈ کا مطلب قرا یقرأ, ریڈ کا مطلب قرأ يقرأ. اور اسٹڈی کا مطلب درس یدرس ہے نا. تو وی اسٹڈی دا عربک ایوری ویک ہے نا. تو نحن ندرس العربیہ کل اسبوع. کیا کہا میں نے؟ نحن ندرس اللغة العربية كل أسبوع. كل نحن کو ہٹا بھی اسبوع. سکتے ہیں, نحن کو ہٹا بھی سکتے ہیں. ندرس العربیہ کل اسبوع. ندرس العربیہ کل اسبوع. كل ہاں, اسبوع. اب نانو کو ہٹا بھی سکتے ہیں. نون جو لگا دیا ہم نے تو وہ نانو کا معنی دیتا ہے. ندرس العربیہ, ندرس عربية عربية كل اسبوع. میں روزانہ آفس جاتا ہوں جاتی ہوں. بولیے. اذهب المكتب أذهب إلى المكتب أذهب إلى المكتب كل يوم. اذهب الى المكتب كل كل يوم. يوم. اذهب الى المكتب اذهب كل يوم. الى المكتب كل كل يوم. اذهب الى میں المكتب روزانہ كل کھانا يوم. میں روزانہ کھانا پکاتی ہوں. أطبخ أطبخ الطعام كل يوم. كل يوم. كل يوم اطبخ الطعام كل يوم اطبخ الطعام كل يوم. ہاں جی. تو دیکھیے گا یہ نمبر 4 کی ایکسرسائز دیکھیے گا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تأمل الامثلۃ, مثالوں پر غور کیجیے. تأمل غور کیجیے ہے نا. الامثلہ مثالوں پر غور کیجیے گا. واکتب مضارع الافعال الآتیۃ. اب نیچے جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی,
اور اللہ ताला उनकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खिड़कियां खोल दे। अल्लाह ताला हम सब के लिए अल्लाह ताला हम सब के लिए आखिरत के मामले को आसान फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे ईमान में इजाफा अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे अल्लाह ताला हमें हर नेक अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें हर बुरे अमल से बचा कर रखे। अल्लाह ताला हमें हर बुरे अमल से बचा कर रखे। अल्लाह हमें देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पैटर्न को हम सीखेंगे और इतना आसान है कि आप घबरा नहीं जाइएगा। 4 पैटर्न कैसे सीखेंगे? यूं सीखेंगे, आप यूं सीखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत आसानी से सीखेंगे। सिस्टर यास्मीन जी सर। आपने आपको बुक 2 कैसी लग रही है? मुश्किल लग रही है? सर शुरू में मुश्किल थी, अब आसान होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ रही है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुक 1 आपने कुछ पढ़ा था? क्लासेस देखी थी आपने बुक 1 की? जी मैंने अटेंड भी की थी ना आपकी क्लासेस कुछ, और वीडियो भी देखे थे। तो बुक 1 को आपने समझा है कुछ? जी सर, पहले से बहुत ज्यादा फर्क है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो प्रैक्टिस जारी रखिएगा। लिखने और पढ़ने की, तर्जुमे की प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। रीडिंग और राइटिंग जो है ना जारी रहनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, है ना। नेवर गिव अप, है ना। चींटी और मकोड़े देख, कीड़े मकोड़े दीवारों पे चढ़ते गिर जाते बेचारे, फिर से सफर शुरू करते, फिर चढ़ने लगते, है कि नहीं। फिर जो है ना आधी दीवार चढ़ते, छत तक पहुंच ही नहीं पाते, फिर गिर जाते हैं, लेकिन वो जो है ना चढ़ लेते हैं फिर, है ना। तो हम गिरते रहेंगे, लेकिन जो है ना अपना सफर हम जो है ना जारी रखेंगे गिर गिर कर। जी इंशाल्लाह सर, अगर आप हमें पढ़ाते रहेंगे तो हम अपना सफर जारी रखेंगे, और आप जब गायब हो जाते हैं तो हम हिम्मत तोड़ देते हैं। नहीं हिम्मत नहीं तोड़ना। आप लोग मेरी सेहत के लिए और जो है ना मेरी उम्र में बरकत के लिए दुआ कीजिएगा आप लोग बस। इंशाल्लाह। सर हम आपकी मतलब तबीयत के लिए अल्लाह पाक हमारे सर को सही सलामत रखे, जब तक अल्लाह पाक मुकम्मल नहीं हो रहा। मैं जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रहूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों से मैं मेरी दिल की ख्वाहिश है मेरी कि आप लोग कुछ सीख ले। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने सीखा है मेरे क्लासेस से अल्हम्दुलिल्लाह। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो एक्नॉलेज नहीं करते, जो बताते नहीं, लेकिन हमें जरूरत नहीं बताने की, एक्नॉलेज करने की। लेकिन मुझे यकीन है कि यकीनन जो है ना बेशुमार लोगों ने मेरे क्लासेस से फायदा उठाया होगा। मैं नहीं समझता कि जो है ना मेरी क्लासेस से लोगों ने फायदा नहीं उठाया। कोई है मेरी क्लास में भी, लेडीज में या जेंट्स में, जिन्होंने जो है ये कि भी अरबी के अंदर कुछ उन्होंने सीखा हो, यानी अरबी का ज़ौक पैदा हुआ हो या अरबी का टेस्ट पैदा हुआ हो अरबी लैंग्वेज का? कोई है मेरी क्लास? जी सर, मैं हूँ सर। आपकी वीडियो देखी थी मैंने एक बार, और उसको देखने के बाद मुझे जो है मैं यहाँ तक पहुंची हूँ जो आपसे बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी का शौक पैदा हुआ मेरी क्लास देखकर आपको? जी सर, आपकी क्लास देख के, और क्या कहते हैं बना पढ़ने का शौक पैदा हुआ, कुरान शरीफ समझने का शौक पैदा हुआ कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप हमें कुरान शरीफ समझ के पढ़ना सिखा देंगे। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे और तौफीक दे। हमारी क्लास में और कौन है जो ये बताए कि मेरी क्लास कभी उसको यूट्यूब पे टकराई हो और उसको शौक पैदा हुआ अरबी पढ़ने का? वरना लोगों को तो अरबी पढ़ने का नहीं। हाँ जी सर, मैं भी हूँ सर। आपकी क्लास एक मरतबा यूट्यूब में देखी, अब जब से बहुत ख्वाहिश हो गई सर मेरे को आपके पास अरबी सीखने का। अल्लाह ताला ने मौका भी अता फरमाया मेरे को। और उसके बाद माशाल्लाह आप तो अच्छे जुमले बनाने लगी अब तो माशाल्लाह आप लोग तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऐसे ही टकराते हैं लोग यूट्यूब में मेरी क्लास से और फिर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह क्लास से सीखने लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी कामयाबी है। चलिए हम जो है ना बात को बढ़ाते हैं आगे। कतबा यक्तुबु पैटर्न 1। कतबा बोलकर देखिए मेरे साथ। कतबा यक्तुबु लिखना। अच्छा, नंबर 2 का पैटर्न जलसा यजलिसु। नंबर 3 का पैटर्न ज़हबा यज़हबु। नंबर 4 का पैटर्न समिअ यस्मअु। अच्छा, आप लोगों को क्या फर्क महसूस हो रहा है 1 2 3 4 चारों पैटर्न में? कुछ फर्क महसूस हो रहा है क्या? ये देखिएगा, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, फिर नीचे बताइएगा आप लोग। देखिएगा, हम कह रहे हैं यक्तुबु। हम क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? यक्तुबु। इसमें जो है ना जो बेसिक जो हुरूफ है हमारे 3 है, काफ ता और बा। काफ और ता और बा। हमारे बेसिक लेटर्स क्या है? रेडिकल्स काफ और ता और कतबा है जी, कतबा है। ठीक है। अच्छा, या जो है ना ये तो मुदारे का है, इसको साइड में रखिए अभी।
या को साइड में रख दीजिएगा, मुदारी की अलामत है ये। बस हमारे जो बुनियादी लेटर है, बुनियादी हरूफ है ना, अलहरूफ अल असासिया, जो हमारे बेसिक रेडिकल्स है वो 3 ही है, काफ और ता, है ना, हर फेल में 3 है। तो इसमें कातबा, इसमें यक्तुबु में काफ ता और बा, तो हम कह रहे हैं यक्तुबु, क्या कह रहे हैं हम यहाँ यक्तुबु। आप ये देखिएगा यहाँ पर जीम लाम और सीन जलसा, यजलिसु, या कह रहे हैं हम यजलिसु यजलिसु। अब ये देखिएगा बीच का जो लेटर है वो जो है ना डिफरेंट है। ये देखिएगा यक्तुबु, ये बीच का काफ ता और बा, बीच के अंदर जो लेटर है वो जो है ना अलग भाग रहा है सबसे। यक्तुबु यजलिसु, बीच का लेटर जो है ना अलग एराब पढ़ दे रहे हैं हम उसको, यजलिसु। क्या कह रहे हैं यक्तुबु, बीच वाला जो लेटर है, बीच का जो हर्फ है उसका एराब जो है ना हम उसकी हरकत को बदल रहे हैं। हम यहाँ पर पेश कहा हमने, बीच के हर्फ में क्या लगाया यहाँ पर? हाँ जी, बीच के हर्फ में पेश लगा दिया, यक्तुबु है ना, बीच के हर्फ में क्या लगा, पेश लगा दिया। यहाँ बीच के हर्फ में हमने जेर लगा दी। ये इसका मतलब जो है ना, जो बीच जो 3 हर्फ है फेल, है ना, लफ्ज का, लफ्ज के अंदर बेसिक फेल के अंदर देखिएगा, याद रखिएगा, अरबी के अंदर जो वर्ब्स हैं उनके जो बेसिक जो लेटर्स है वो 3 लेटर है ना, मिनिमम 3 लेटर होते हैं, है ना। तो जो है ना 3 में से जो बीच में का जो लेटर है उसको हम जो है ना छेड़ रहे हैं। किस हर्फ के हरकत को छेड़ रहे हैं हम? बीच वाले हर्फ की हरकत को हम छेड़ रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं यक्तुबु, यहाँ कह रहे हैं यजलिसु, बीच वाले हर्फ की हरकत को छेड़ रहे हैं हम। यहाँ देखिएगा बीच वाला हर्फ क्या है, बीच वाला हर्फ क्या है? हाँ है। तो ज़हबा का यज़हबु, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यज़हबु। यहाँ पर कहते हैं यक्तुबु, पेश लगा रहे थे हम, यहाँ पर यजलिसु, यहाँ जेर लगा रहे हैं हम बीच के हर्फ को, यहाँ पर यज़हबु जबर लगा रहे हैं हम बीच के हर्फ को, सारी जगह पर छेड़ रहे हैं हम बीच वाले हर्फ को। समिअ यस्मउ, देखिए यहाँ पर जो है ना दोनों, यहाँ पर भी जबर है और यहाँ पर भी जबर है ना, यज़हबु, लेकिन यहाँ पर माजी में जो है ना जेर लगा दिया, तो समिअ यस्मउ। तो सिर्फ जो है ना पैटर्न को याद रखिएगा, मेरे साथ एक मरतबा रिपीट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कतबा बोलिएगा, कतबा का हुआ तो आप क्या कहेंगे? कैसे फिर हम कैसे याद रखेंगे शेख कि किस पे जेर आएगा, किस पे जबर आएगा और किस पे पेश आएगा? आप अभी तक कैसे बड़े हो गए? आप छोटे थे ना? हाँ जी, आप छोटे से थे, आप बड़े कैसे हो गए वो बताइए। हो गए बड़े? सर ने जब इतना सिखा दिया ये भी सिखा देंगे इंशाल्लाह। आप ऐसे ही अरबी में बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप छोटे, इंशाल्लाह खुद को खुद आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आप बड़े हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता, हम बड़े हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि नहीं। तो जो है ना ऐसे ही होता है, हम रोजाना जो है ना हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हम इतने बरस के हो गए और बूढ़े भी हो गए, समझ में नहीं आता हमें। तो हमें जो है ना हम अरबी ऐसी ही सीखेंगे और हमें पता नहीं चल पाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो उसके फिक्र नहीं करनी है हमें कि हम कैसे सीखेंगे। तो मेरे साथ बोलते रहिए सिर्फ आप, कतबा यक्तुबु, कतबा यक्तुबु। तो दखला हाँ जी, यक्तुबु के वजन पर बोलकर दिखाइए मुझे आप। दखला यदखुलु, कतबा यक्तुबु, कतबा यक्तुबु। अच्छा, खरजा यखरुजु, बस यक्तुबु के वजन पर बोलना है आपने। नंबर 1 का पैटर्न जी, नंबर 1 के पैटर्न को याद रखना है हमें अभी फिल वक्त। खरजा यखरुजु, सजदा यसजुदु, सजदा यसजुदु, अकला याकुलु, qatala yaqtulu, yaktubu। क्या कहेंगे हम? यक्तुबु। तो कतला यक्तुलु। तो अब जो है ना कतबा यक्तुबु जो पैटर्न नंबर 1 है, इसका हम कुछ नाम रख लेते हैं। मेरा नाम अब्दुल सलाम है। मेरा नाम क्या है? अगर मैं नाम ना बताता तो आप देखते तो वो कुछ ना कुछ तो नाम चाहिए ना पुकारने। आपका नाम आमिना है, फातिमा है, ज़ैनब है, रुकैया है ना, और जो है ना आपका नाम हुदा है। हुदा है क्या मेरी क्लास में?
जी हाँ जी माशाल्लाह अहसनते सुन रही है समझ रही हैं उदा आप तफमीन या उदा नाम माशाल्लाह चलिए सर तो ये सलासी मुजर्रद और बाब नसरा तो के वो वजन अभी पर मुजर्रद ये सारे आप मुजर्रद और मजीद में नहीं जाना हमें सिर्फ नाम याद रखना है इसका कतब यक्तुबु का पैटर्न का यह है इसका नाम है नसरा इस पैटर्न का नाम याद जी रखिएगा नसरा नसरा यंसुर हाँ जी नसरा पैटर्न का नाम यंसुर बस इसको हम नाम दे देते हैं एक नसरा का ताकि याद रहे नसरा से हमारा कोई लेना देना नहीं है भले ही नुसरत ना भी करे ये हमारी लेकिन इसको बोलना है नसरा यंसुरो नाम याद रखना है इसका नाम कंप्यूटर है इसका नाम टेबल है इसको दीवार कहते हैं इसको पंखा कहते हैं और इसको नसरा कहते हैं इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं नसरा यंसुर हाँ बस इसका नाम है बस इतना ही याद रखिएगा बाकी नसरा से कोई लेना देना नहीं है हमें उसके चक्कर में मत पड़िएगा आप अभी तो नसरा यंसुर नसरा यंसुर हाँ अगर मैं कहूँ आपसे कि भी दखल को नसरा के वजन पर पढ़िए तो आप नसरा यंसुरो को याद रख लीजिएगा सिर्फ नसरा मुदारे यंसुरो तो मैं कहूँ दखला नसरा से है तो आप क्या कहेंगे दखला यदखुलु क्या कहेंगे हाँ अगर मैं पूछूं आपसे कि खराजा किस पैटर्न से किस बाप से तो आप कहेंगे नसरा से अब क्या कहेंगे इसको हम यंसुरु तो खराजा शुरू के पैटर्न से है खराजा यखरुजु है ये है ना समझ आ गई के बात जी सर तो पैटर्न नंबर जी नसरा यंसुरु अच्छा ये देखिएगा नंबर 2 मैं 5-10 मिनट ले लूं आप लोगों के और फिर जी सर जी इंशाल्लाह चलिए ताकि जो है ना बस जल्दी से 1 मिनट बताऊंगा जलसा यजलिसु जलसा बस इसको याद रखना है इस पैटर्न का नाम है ज़रबा यज़रिबु इस पैटर्न का नाम क्या है यज़रिबु मैं कहूँ गसला जो है गसला जो फ़ेल है वो ज़रबा से है तो गसला ज़रबा यज़रिबु को जुबान में घुमाइएगा यज़रिबु गसला यग़सिलु कहेंगे आप मैं सिर्फ इतना बता दूं ये बाप ज़रबा से है तो आप ज़रबा यज़रिबु याद रखना है आपको क्या याद रखना है ज़रबा यज़रिबु बस इतना याद रखना है क्या याद रखना है आपको ज़रबा यज़रिबु अपनी इस स्केल को सही रखना है आपने स्केल को सीधा रखना है स्केल को टेढ़ा नहीं करना आपने स्केल टेढ़ी रखेंगे लाइन टेढ़ी खींचेंगे आप तो स्केल को सीधा रखना है ज़रबा यज़रिबु नसरा यंसुरु इस स्केल को सही रखिए आप और बाकी जो है ना खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे जितने वर्ब से अरबिक में खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे सारे जितने वर्ब से है तो गसला ज़रबा से है तो ज़रबा बोलिए मुदारे ज़रबा यज़रिबु तो गसला रजअ अच्छा ये जो 3 नंबर का जो पैटर्न है ज़हब यज़हबु ये है फतह यफ्तहु इस पैटर्न का नाम है फतह यफ्तहु बस यूं ही उसका खोलने से कोई ताल्लुक नहीं है बस नाम याद रखिए और बस खलास हाँ जी वो उसके फतह यफ्तहु बस पैटर्न का नाम याद रखिए फतह यफ्तहु और उसका स्केल याद रखिए फतह यफ्तहु ज़हब यज़हबु तो रका यरकाउ फतह यफ्तहु रका यरकाउ फतह यफ्तहु रफा ये सब फतह से सब फतह यफ्तहु रफा सअल यसअलु सअल और फतह यफ्तहु जो कि पैटर्न का नाम है और समिअ यस्माउ ये खुद ही पैटर्न का नाम है हाँ जी समिअ यस्माउ ये खुद ही पैटर्न का नाम है समिअ यस्माउ खुद पैटर्न है ये ठीक है तो फहिमा यफहमु यस्माउ यफहमु लाइबा यलअबु यस्माउ यलअबु यस्माउ हफिज़ा यस्माउ यहफ़ज़ु
यस्माउ यहफज़ु, शरिबा यस्माउ, यशरबु शरिबा, यशरबु रकिबा रकिबा यस्माउ, रकिबा यरकबु, रकिबा यरकबु। तो इनको जो है ना, इन पैटर्न को हमें कितना याद रखना, ये सिर्फ जो है ना 4 पैटर्न के स्केल जो है ना अच्छी तरह याद रखिए, तो सारे वर्ब जो है ना ठीक ठाक इंशाल्लाह याद हो जाएंगे हमें। तो कहता जो है ना नसारा, मेरे साथ बोलिए मुदारे, नसरा यंसुरु नसारा यंसुरु नसारा यंसुर, दरबा يضرب फतहा, यफ्तहु فتح يفتح हाँ जी, और समिआ यस्मउ यस्मा। जब हम कहेंगे समिआ तो मुदारे यस्मा। يسمع बस इतने पैटर्न याद रखना है, बाकी के जो है ना ये अल्फाज तो हमें याद हो चुके होंगे। अगर ये पैटर्न याद हो गया तो अल्फाज याद होंगे सारे हमारे। क़तल यक़्तुलु, फिर जो है ना आप खुद ब खुद बताएंगे इसको कि भाई जो है ना इस बाब से है ये। देखिए कितने वर्ब सब जो है ना हमने सबके मीनिंग भी जो है ना याद कर लेंगे इंशाल्लाह। दखला यदखुलु, मीनिंग बोलिए धड़ से 2 मिनट में। दखला यदखुलु, दाखिल दाखिल होगा, खरज यखरुजु, हो रहा है, वो निकलेगा बस निकलना, बस निकलना, खरज यखरुजु निकलना। सजद यसजुदु, सजदा करना, किया अकल करना, यअकुलु, अकल यअकुलु, खाया और खाना, क़तल यक़्तुलु, किया और करना, गसल यग़सिलु, और धोना, रजा यरजिउ, उठना, नज़ल यंज़िलु, उतरना, कसर यकसिरु, टूटना, तोड़ना, ज़रब यज़रिबु, मारना, रका यरकउ, सवार होना, नहीं रका यरकउ, रका यरकउ करना, झुकना, झुकना, रका यरकउ झुकना, ना, रुकू करना, किसी के सामने झुकने को भी रका कहेंगे। और नमाज में जो रुकू होता है वो यही लफ्ज है, रका यरकउ, झुकना। रफा यरफउ, बुलंद होना। हाँ, रका का अपोजिट है ये। तो रफा ऊंचा करना, एलिवेट करना किसी को। रफा यरफा ऊंचा किसी चीज करना, को ऊंचा करना, रफा यरफा ऊंचा करना, बुलंद करना, एलिवेट करना, रेज करना, रफा यरफा। और सअल यसअलु, सवाल करना, सवाल करना या मांगना, सवाल करना या मांगना, सवाल करना या मांगना, मांगना हाँ। वो अम्मा साइला फला तनहर, वो अम्मा साइला, मांगने वालों को झिड़की मत दो, वो अम्मा साइला फला तनहर। ठीक है, तो जो है ना, अच्छा, फतह यफ्तह खोलना, ठीक है, समझना, समझना, फहम यफहम समझना, लअब यलअबु खेलना, हफिज यहफज़ु, याद करना, शरिब यशरबु, पीना, और रकिब यरकबु, सवार ये है सवार होना। कहीं पर प्लेन पर सवार होना, शेख फ़अला के मीनिंग क्या बोले? करना, फ़अल यफ़अलु करना, कुछ भी करना। फ़अल यफ़अलु का मतलब करना, हाँ, टू डू समथिंग, कुछ भी करना, कुछ भी करना है ना। फ़अल यफ़अलु का मतलब करना, बस। तो रकिब यरकबु, सवार होना, चाहे आप प्लेन पर सवार हो, ट्रेन पर सवार हो, या किसी जानवर पर सवार हो, या कश्ती पर सवार हो। और रकिब यरकबु, ठीक है। तो हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी जो है ना आज एक बहुत अहम चीज पढ़ी। आप लोगों को समझ में आई कि मुश्किल लगा ये? अच्छा लगा, बहुत समझ आई और आसान लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आसान लगा। पहले सर वो लग रहा था कि कैसे होगा। नहीं, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये सारे अल्फाज और सारा जो है ना बोल कर और सुन कर जो है ना सारे जो है ना पैटर्न के जो नाम है वो आप लोगों को याद हो चुके होंगे इंशाल्लाह। और जो है ना आप यूं जो है ना आप अपने बहुत सारे हजारों अल्फाज जो है ना आपको वर्ब सर्वी के याद हो चुके होंगे। देखिए इतने अल्फाज तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह याद ही होंगे। दखल यदखुलु, खरज यखरुजु, सजदा यसजुदु, अकला याकुलु। एहराम न भी लगाओ तो आप खुद ब खुद जो है ना आपकी जुबान पे चढ़ा देंगे इंशाल्लाह। उसको हमारी जुबान का हिस्सा बनता है इंशाल्लाह वो। तो हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना इंशाल्लाह फिर जो है तो आगे जो है ना बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने एक्सरसाइज डाली है तो उसको जो है ना समझ कर जो है ना उसका तर्जुमा करने की कोशिश करें और उसको जो है ना फिर ग्रुप में डालें ताकि जो है ना इंशाल्लाह मैं फिर उसका करेक्शन करके मैं आप लोगों को वापस दूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
ورحمۃ اللہ جزاکاللہ خیر وعلیکم السلام کثیر ورحمۃ اللہ شکریہ جزاک اللہ سر جزاک اللہ خیرا اللہ يعطيك عافية. اللہ آپ کے ساری پریشانیوں کو دور کر دے الله يعطيك عافية. اللہ آپ کو سلامت صحیح سلامت عمر میں صحت برکت دے اور سب کی صحت میں برکت دے آمین آمین یا رب العالمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.